یہ جو کراچی میں انعقاد کیا جا رہا ہے، تیاریاں اس کی گزشتہ سب سے ہی جاری ہیں، اور آج صبح سے جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں سے چھوٹے بڑے کارواں اس طرف آ رہے ہیں۔ مزار قائد کراچی کی پہچان، اس جگہ پر ہم موجود ہیں اور کپتان کے جو کھلاڑی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ارد گرد۔ تاہم اس وقت تک جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ نہیں آئی ہے، لیکن ان لوگوں سے ہم جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کپتان کے کھلاڑی بنے ہیں اور کراچی کے حقوق کی جو اب جنگ، جیسے یہاں پہ مختلف فورسز لگے ہیں کہ حقوق کی جنگ ہے اور کپتان کے سنگ ہے، تو یہ اب کیوں شروع کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی، کہاں سے ہیں پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں۔ میں لانڈی سے آیا ہوں۔ لانڈی سے آئیں جی۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کراچی کے حقوق کی جنگ کا وقت لیٹ نہیں کر دیا آپ لوگوں نے؟ نہیں، لیٹ تو خیر نہیں ہوا۔ اچھا، تو ابھی بھی وقت ہے۔ ہاں، تو ہم عمران کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ان چوروں کو بھگا کے رہیں گے اچھا اور چوروں کو بھگائیں گے۔ اچھا، کراچی کا مسئلہ پانی، بجلی، صفائی ستھرائی، جی۔ چور کی بات بعد میں کرتے ہیں، ذرا پہلے ان کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ کس سٹیج پر ہیں؟ یار یہ کوئی کام بھی نہیں ہو رہا، اچھا۔ کراچی لوارسوں کی طرح چل رہی ہے، ابھی جیسے لاوارس ہے، کوئی اچھا۔ کام نہیں ہو رہا۔ اچھا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کراچی لاوارسوں کی طرح چل رہی ہے تو ہے نہیں؟ کراچی اگر لاوارسوں کی طرح چل رہی ہے تو یہ جو جنگ آپ نے شروع کی ہے اس کو ذرا وقت نہیں لگ گیا؟ لیٹ نہیں ہو گئی آپ کی جنگ؟ لیٹ ہو گیا، میں بول رہے ہیں چور یہ ہوت رہے چور اچھا ایک منٹ، یہاں کراچی کی جنگ میں گو نواز گو کے نعرے بھی لگ چکے ہیں جو پی ٹی آئی کے کھلاڑیوں کا خاصہ ہے، تاہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ٹرک ہے اس میں خواتین جو ہے وہ اس وقت اب بالکل ریلی پیک ٹائم پر ہے، جو اب سے کچھ لمحوں کے بعد شروع ہوگی، تو اس کو بھی تیار کیا جا رہا ہے، جو یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ پلان ابھی تک جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے صبح سے ہی، کوئی فکس پلان نہیں ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں اور کوشش کریں گے کہ جب ٹاپ لیڈرشپ آئے تو اس سے بھی ہم پہنچے کہ اتنی چینجز یا اتنی تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں اور مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ جی سر۔ ایک منٹ بھائی جان، ذرا سائڈ پہ ہوتے ہیں، سائڈ پہ ایکسکیوز می دوست، السلام علیکم۔ مجھے ذرا کیمرہ آ گیا، ذرا مجھے یہ بتاتی ہیں کہ جو کراچی کے حقوق کی جنگ آپ لڑنے جا رہی ہیں کپتان صاحب کے ساتھ، یہ کوئی دیر نہیں ہو گئی اس جنگ کو لڑنے میں؟ اچھا اچھا، مجھے اچھا مجھے یہ بات لوگ آیا کرتے تھے، آج اپنے اپنے کنوینس سے آئے ہیں۔ اچھا کیا وجہ ہے، یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ عمران خان نے بتائی ہے ہمیں گھر بیٹھی عورتوں کا اویئرنیس دینے والے ہیں۔ اچھا، نواز شریف نہیں ہے، 2000 میں نہیں آئے ہوئے کوئی بھی ہم۔ اچھا، یہ بچے 2000 میں نہیں آئے ہوئے۔ اچھا آپ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ جو ماضی میں سیاسی ماضی میں سیاست ہوتی رہی ہے وہ اب نہیں چلے گی۔ اچھا، اس ریلی سے آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی کراچی کے مسائل حل ہوں گے؟ اگر 100% نہیں 10% کچھ تو ہوگا، لیکن تو اس 10% میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن خان آئیں گے تو ہم ان کو اور زیادہ اپنے مسئلے بتائیں گے کہ یہاں کیا کیا مسئلے ہیں۔ چلیں، خان نے جیسے KPK بنایا ہے، ہو سکتا ہے کراچی بھی بنا دے۔ KPK یعنی کہ آپ سمجھتی ہیں اچھا بن گیا؟ میں وہیں کی ہوں۔ اچھا، آپ کہاں KPK سے؟ کاسٹ وہاں کی، میرے بردر وہاں ہیں، اچھا۔ لیکن مجھے جو پتہ چلتا ہے یہاں پر تو مجھے وہ یہ کہتے ہیں کراچی چھوڑ کے یہاں آ جاؤ۔ اچھا، لیکن میری تو پیدائش یہاں کی ہے نا، میرے تو انسیت یہاں کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں KPK تو نہیں، لیکن فادر میرے وہیں کے ہیں۔ اچھا، تو آپ مگر وہاں کی ہم دھوم سنتے ہیں، تو میری یہی ریکویسٹ ہے خان سے، خان اس کو بھی KPK جیسا بنا دے کراچی کو، جو پہلے کراچی تھا۔ ٹھیک ہے، خان بنائیں گے، ٹھیک ہے، خان کو پھر پوزیشن پر بھی آنا پڑے گا۔ خواتین کو پیور سیکیورٹی میں اس وقت PTI کارکنان جو ہے وہ اس ٹرک پہ جو ہے وہ موو کرا رہے ہیں تاکہ یہ اس ریلی کا حصہ بنے سیکیورلی۔ تو یہ انوائرمنٹ ہے، ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ PTI کے کارکن سے بھی بات کریں، جہاں مختلف لوگوں سے ہم بات کریں اور مزید خواتین سے بات کریں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم آنٹی، ذرا مجھے بتائیں گی کراچی کے حقوق کی جنگ عمران خان جو لڑنے جا رہے ہیں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایک منٹ پہلے یہ مائک ان کے پاس۔ جی جی اچھا، چاند پہ رہتے ہیں فوجی، فوجی چاند پہ رہتے ہیں۔ اچھا، اسی مدد رہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں معلوم، ان کو اپنے پاس بیمار 8,000 یہ جو ناچ چڑھنے والے، ناچ ٹرکوں پہ چڑھنے والے وہ گھروں سے نکل آئے، کیا چاند پہ رہتے ہیں یہ فوجی؟ یا تو یہ فوجی ملے ہوئے انڈیا سے، اچھا، یا پھر اگر ان میں رہتے تو یہ ایک منٹ میں ساری حکومت کے ہر فرد کو
पूरी हुकूमत के हर फर्द को उल्टा लटकाई थी चोरों पर, उल्टा लटकाए। ठीक है। उनकी हालत में से सब कुछ निकाले हमारा माल। आप कराची से कहाँ से रहती हैं आप? मैं कराची यहाँ नॉर्थ से आई हूँ। अच्छा। बीमार आई हूँ, बहुत बीमार हूँ, लेकिन मैं इसलिए निकल के आई हूँ, मैं अपना हिस्सा इस जंग में डालूंगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बीमार खातून जो जज्बाती थी, उनसे हमने बात किया, और भी खवातीन हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करते हैं और जानेंगे कि उनकी सोच क्या है कराची के मामलात में, कराची के मसाइल में। जी हाँ जी। उनके यहाँ इंडिया में अगर ऐसा वज़ीर आज़म होता नवाज शरीफ जैसा, तो उनकी अवामी का भी और ऐसी मार डालती। आंटी मुझे सिर्फ एक बात बताएं, कराची के मसाइल में वजीर आजम का अमल दखल ज्यादा नहीं जितना लोकल इंतजामिया सिंध हुकूमत का है, उसका उस एस्पेक्ट से मुझे जरा बताएं। एक मिनट आंटी। हाँ, सब एक जैसे हैं। अच्छा। नवाज शरीफ हुआ, अल्ताफ हुसैन हुआ, सारे रॉकी एजेंट है, इनको आवाम से कोई मतलब नहीं, अपने पैसे बना रहे हैं। उस वक्त तकबीर से आए थे ये लोग, और अब कितने अमीर अमीर हो गए। बरतानिया तक को खिला डाला इन्होंने पैसा। बरतानिया तक को खिला डाला, वो उनका केस में दबा दिया बरतानिया ने इंडिया के कहने पर। अच्छा। इंडिया के एजेंटों को हमें चुन चुन के मारना है। अच्छा। इंडिया के एजेंटों को चुन चुन के मारना है। मुझे ये बताएं, कराची के जो लोग हैं वोट भी देंगे फिर इमरान खान को? 2013 में तो हमने काफी चेंज रिस्पॉन्स देखा। महाजिरों को इसका ऐसा बना दिया है, महाजिरों का ऐसा बना दिया कि इनकी सोच इतनी सी हो गई है। अच्छा। इतने गंदे लीडर, अल्ताफ हुसैन जैसा दुनिया में बदतरीन आदमी कोई नहीं, उसको लीडर बनाते हैं। नालत है इस महाजिर कौम पर, नालत है इस महाजिर। यानी कि आप 2018 में इमरान खान को मैंडेट दे रहे हैं आप लोग? 2018 में फिर इमरान खान को मैंडेट दे रहे हैं कराची से? आधे लोग तो देंगे, लेकिन अगर करप्शन नहीं हुई, बेईमानी ना हुई, तो फिर फैसला होगा। चलो, बहुत शुक्रिया। लेकिन निचला तबका पूरा महाजिर का, जिनको एमक्यूएम ने स्कूटर और चिंची वाला बना दिया है। अच्छा। पढ़ाई तो खत्म कर दी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो कराची शहर की, उससे हमने बात की, खातून बीमारी में यहाँ पर आई है, और इस वक्त हुकूक कराची रैली में नवाज गो के नारे और जो है वो ज्यादा हमें सुनाई दे रहे हैं। सिंध हुकूमत को यहाँ पर हमें लोग भूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, कराची के मसले का हल वफाकी हुकूमत ने करना है या गो नवाज गो के नारे क्यों लग रहे हैं? ये तो सिंध हुकूमत का काम है या लोकल इंतजामिया का काम है? नहीं, ये गो नवाज गो के नारों से ही होगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी सर, आप क्या कहते हैं, ये हुकूक कराची रैली है या गो नवाज गो रैली है? ये दोनों है। अच्छा, ये सिंध के लिए भी है, जरदारी के लिए भी है, और ये नवाज शरीफ के लिए भी है। अच्छा। गो नवाज गो और गो जरदारी को दोनों के लिए है। ये हुकूक कराची रैली है, हुकूक कराची रैली है, पानी के लिए रैली है, के इलेक्ट्रिक के लिए रैली है, हुकूक के लिए, करप्शन के खिलाफ रैली है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी धरना दे रही है, पीएसपी ने कराची के हुकूक के लिए 18 दिन धरना दिया, तो उसमें आप लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं की? इसलिए सपोर्ट नहीं की, ये हमारे अपनी पार्टी की अपनी पॉलिसी है। अच्छा। वो पहले जो ना, पहले भी वो लोग धरना देते रहे, पीएसपी ने 18 दिन बैठ के क्या कर लिया? अच्छा, क्या कर लिया? कुछ सब भी लोग नहीं किया। निकल के तो आ गए ना, सारी पार्टियां आ गई। पार्टियां निकल के है, लेकिन इस तरह तो नहीं निकले। ये अवाम को देखो, ये अवाम किसके साथ है? कम ये नहीं है अवाम अवाम इमरान वैसे। खान के साथ है। अवाम कम नहीं है, और ये आपने कोई पार्टी पॉलिसी लेट नहीं होगी आपकी? नहीं, कोई लेट नहीं हुई है। हम पहले से दिन है। आज एक मिनट, आज से 2 साल पहले हम लोगों ने एक नारा लगाया, गो नवाज गो। आज सारी पार्टियां कह रही है गो नवाज गो। क्यों? ये हमारी पॉलिसी थी, आप इसमें, आप गो नवाज गो में खुश हैं? हम खुश कराची के मसाइल में हम ये नवाज हटेगा, ये सिंध की करप्ट हुकूमत हटेगी, तो आवाम के मसाइल हल होंगे। जब तक ये अपने हुकूक के लिए आवाम निकली है, जब आवाम निकलती है तो सारे मसाइल हल होते हैं। ठीक है। जब आवाम नहीं निकलती है तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आवाम निकलती है। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, आवाम निकलती है, ये आवाम वोट भी देती है, तो फिर क्यों जो है आपकी लीडरशिप नहीं आती? लीडरशिप आती है, ये धांधली करते हैं ना, हैं? ये धांधली करते हैं, ये धांधली करते हैं। अच्छा, ये हाँ, तो लीडरशिप आपकी आती है। लीडरशिप आ जाती है तो आप क्या समझते हैं कि क्या तब्दीली आ जाएगी? इंशाल्लाह तब्दीली आ जाएगी, इंशाल्लाह। क्या तब्दीली आएगी? तालीम में, सियाहत में, हर चीज में सब तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। ये पुल, ये मेट्रो वगैरह से तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, ये भी आपके आराम के लिए साहब? नहीं, आराम के लिए, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, ये घर के लिए। एक मिनट, हमें रोजगार चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें सियाहत चाहिए, हमें ये मेट्रो, ये पुल नहीं चाहिए। क्या कहते हैं भाई? ये भी पैसा कमाने का जरिया है। मेट्रो बस, ये रोड बनाना, ये सड़कें, ये करप्ट
करप्शन है, ये करप्शन कर रहे हैं। अच्छा, करप्शन के रास्ते हैं। जी भाई, तालीम की आप बात कर रहे हैं। तालीम सबसे पहले तालीम जरूरी है, उसके बाद सेहत जरूरी है, उसके बाद ये मेट्रो का और ये पुलों का और सड़कों का। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये हुकूक कराची रैली है। बिल्कुल कराची के मसाइल, पानी, बिल्कुल इनके हवाले से गो नवाज गो के नारे लगा के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? गो नवाज गो होगा तो ये सब करप्शन खत्म होगी और उसी सब जड़ यही है। गो नवाज मुझे लग रहा है आप पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध को भूल रहे हैं फिर आज की रैली में। बिल्कुल गो नवाज गो होगा तो सारी करप्शन खत्म होगी। अच्छा, जड़ यही है, जड़ गो नवाज गो है, सब कराची भी ठीक होगा, लाहौर पूरा पाकिस्तान ठीक होगा वैसे जब गो नवाज गो होगा। कराची में अमन आने का क्रेडिट देते हैं नवाज शरीफ साहब को या ये क्रेडिट आर्मी को जाता है? अच्छा, नवाज शरीफ को नहीं जाता। नवाज शरीफ पहले भी 6 मरतबा आ चुका है, पहले कभी इस तरह अमन नहीं हुआ। उनके वज़रा तो बड़ा क्रेडिट लेते हैं। उनके वज़रा पागल हैं, वो तो उनके वज़रा तो रेलवे के एक्सीडेंट हो रहे होते हैं और उनके वज़रा आके बयानबाजी उनकी खत्म नहीं हो रही होती उनकी पॉलिटिक्स पे। अच्छा, ये पनामा के बाद अब ये गो नवाज गो होगा, पूरा कराची बोलेगा, पूरे पाकिस्तान को हम दावत देते हैं आए और गो नवाज गो करें। एक मिनट चाचा, एक जो है सीनियर सिटीजन यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चाचा बात नहीं करना चाह रहे। ये लोगों का इस वक्त जोश और वलवला है और गो नवाज वो हावी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने इस रैली के जो शुरका थे, मर्द हजरात, उनसे बात की। अब इस वक्त हम उस ट्रक के ऊपर मौजूद हैं जो खवातीन के लिए बनाया गया है इस रैली में उन्हें मूव कराने के लिए। इसके इर्द गिर्द बड़ा जमे गफीर है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों की तादाद मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों की सूरत में इस जगह पर आ रही है। खवातीन की भी उसी तादाद से तादाद बढ़ रही है। साबिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और फिर इस ट्रक में मजीद कारकुनान खवातीन हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि जब हुकूक कराची की बात हो रही है, कराची के मसाइल की बात हो रही है, तो खवातीन इन मसाइल से बड़े डायरेक्टली रिलेटेड हैं। घरों में होती हैं, कुछ वर्किंग भी होती हैं, तो उनका क्या इस वक्त जो है वो एस्पेक्ट है इन तमाम तर सूरत हाल से, वो कैसे नबर्द आजमा हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया और इजाज़त दी जगह आने के लिए। मुझे ये बताएं, खवातीन घर में भी हैं, दफातर में भी हैं, पार्टी कारकुनान भी हैं, कराची के मसाइल में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, यहाँ पर कराची के अगर मसाइल की हम खास पॉइंट आउट करें तो वो सीधा सी ये चीज़ें कि पानी, बिजली, गैस जो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा तो बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन ये बाशऊर खवातीन हैं जो समझती हैं, पढ़ी लिखी खवातीन हैं जिन्हें पता है कि अपने हुकूक के लिए कैसे निकलना है। इसी सिलसिले में हमने अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमने हुकूक मार्च रैली इसीलिए निकाली है कि कोई भी आवाम को जगा सके, उनमें शऊर बेदार कर सके कि ये आप ही के हुकूक हैं और इस हुकूक के लिए आप ही लोगों को आवाज उठानी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सोए हुए अवाम की आपने बात की, अवाम सोए हुए क्यों हैं? क्या उन्हें नहीं नजर आ रहा 2013 का इलेक्शन हमारे सामने है? इस प्रैक्टिस से, इस रैली से आप समझते हैं कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे जहां पीएसपी 18 दिन बैठी है, तमाम सियासी जमातें निकल पड़ी हैं सड़कों? अच्छा देखिए, पीएसपी 18 दिन बैठी है वहाँ पर और नवाज शरीफ ने एक बयान दिया कि जी इनकी औरतें आती हैं, इनके धरनों में और जलसों में होता है। ये इस वक्त इस चीज़ की गवाही है, ये प्रूफ है कि इतनी खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसी तरह के हमारे 2 प्लॉट और भी मौजूद हैं और कुछ खवातीन अपनी गाड़ियों में भी आ रही हैं। चूँकि खवातीन को पता है कि ये वाहिद जमात है जो इंसाफ दिला सकती है, वरना तो और भी जमातें हैं, तो इसीलिए उनके साथ ही आवाज बुलंद करने के लिए निकली। आपकी जमात लेट तो नहीं हो गई है? सॉरी टू से, जरा मुझे ये भी बताएं। देखिए, जब कराची के हुकूक के लिए मैं आपको बताती हूँ, 2013 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो हमारा मैंडेट चुराया गया। सबको मालूम है, एवरीबडी नोज कि उस जमाने में जिस तरह से हमारा मैंडेट चुराया गया, जगह जगह से हमारे इलेक्शन डब्बे खाली किए गए, डब्बे भरे गए, तो सबको मालूम है। तो वो खौफ का एक माहौल पैदा हो गया था। खान साहब ने उस चीज के लिए भी आवाज उठाई थी और ये तमाम लोग वापस से निकले हैं उस आवाज के लिए। आप ये देख सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, दूर दूर तक एक जंबे गफीर है और अपनी हक की आवाज के लिए निकला है। तो अच्छा, आप क्या कहती हैं जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग? मुझे ये बताइए, खवातीन किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकती हैं कराची के मामलात में? खवातीन का तो इतना अहम रोल है हर जगह पे, चाहे आप वो डॉक्टर ले लें, इंजीनियर ले लें या कहीं भी ले लें। तहरीकों में भी हिस्सा होता है, जंगों में भी हिस्सा है। ये तो इस्लाम ने हमें दिखाया है कि खवातीन के जितने हुकूक कलाम पाक में मौजूद है इतने कहीं भी मौजूद नहीं है। तो एक मिनट में आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं जरा ट्रक के बाएं जानिब आपको लेकर चलूंगा। कैमरामैन आमिर से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो है वो इमरान खान का काफिला
पहुंच चुका है और ये इस वक्त कैंप की जानिब रवां दवा है जो यहाँ से चंद कदम की दूरी पर है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी में जो है वो लोकल कराची की लीडरशिप मौजूद है। फैसल वाबडा को आप देख रहे हैं पीछे अभी जो काफिला है उसमें भी जो है वो लोग और लीडर मौजूद हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और ये काफिला आते ही क्राउड जो है वो इस मजमे में काफी चार्ज हो गया है और आप देख सकते हैं कि किस हद तक गहमा गहमी और स्पेशली खवातीन जो है जो ट्रक पे हमसे बात कर रही थी आधी से ज्यादा इस वक्त जो है वो उस तरफ वेव कर रही हैं। ये भी हम कंफर्म करते हैं, आप ये कंफर्म करती हैं कि इमरान खान साहब इसी काफिले में हैं? बिल्कुल, इमरान खान साहब इसी काफिले में हमारे साथ चलेंगे और खवातीन के फ्लोट के साथ इमरान खान साहब जो है बस होगी उसमें इमरान खान साहब भी करेंगे और वो मार्च भी करेंगे। अच्छा, मार्च भी करेंगे। ठीक है, मैं कुछ और खवातीन से बात कर सकता हूँ जो मुख्तलिफ इलाकों के रेजिडेंट। आप कहाँ से आई हैं जी, किस इलाके से? अच्छा, कराची से। आप किस इलाके में रहती हैं? फेडरल बी एरिया में रहती हैं। मुझे जरा बताएं फेडरल बी एरिया के क्या मसाइल हैं जो आपको इस जंग में शामिल होने पे उकसा रहे हैं? मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि हम लोग अब आजिज आ चुके हैं इस हुकूमत से, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो। हम नहीं चाहते कि अब ये हुकूमत मजीद 2 दिन और भी बर्दाश्त करें। अब लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बच्चों का मसला है, हमारा मसला है, स्कूल का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है। अल्लाह के वास्ते हमारा पीछे छोड़ दें, अल्लाह के वास्ते। हमारा ये वतन पाकिस्तान है, मुसलमानों का वतन है, हमें अपना लीडर मुसलमान चाहिए, इमरान खान चाहिए। मुझे एक बात बताएं, ठीक है ये बात तमाम तर ठीक है आपकी दुरुस्त है, मान ली जाती है। इलेक्शन 2013 हमारे सामने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी आपका मैंडेट चोरी हुआ है। तो 2018 में खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ये तो फिर आपकी एफर्ट सारी ज़ाया हो जाती है। नहीं, हम लोग को लड़ना पड़ेगा। अल्लाह न करे अगर ऐसा कोई मसला हुआ तो हम फिर भी इमरान खान साहब का पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारे लीडर हैं और हमारे बानी हैं वो, और हम लोगों के लिए आज भी कुर्बान है और कल भी कुर्बान है। ये पाकिस्तान हमारा रहेगा और जो चोर है वो आपको सबको पता है कौन है चोर। अच्छा। और अगर अल्लाह न करे कल को ये कोई बात हो जाती है तो सब मैं ये चाहती हूँ हमारी पूरी आवाम हमारे। अच्छा, ये रैली जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब आप मुझे जरा बताइए कंट्रीब्यूट करेगी मसाइल के हल में? क्योंकि बड़ा लोगों की कुछ तनकीद जो करने वाले लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा शो छोटा है और एक रोजा है, तो आप क्या समझती हैं? नहीं जी, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ये रैली। आप देख रहे हैं कि अगर लोग घरों से निकले वो एक दिन की वजह से नहीं निकले हैं और ये कोई फंक्शन नहीं चल रहा है, ये हुकूक के लिए निकले, अपने हक के लिए निकले। तो मेरा ख्याल है कराची की पूरी आवाम अपने हुकूक जानती है, इसीलिए बाहर निकली है। ये बाशऊर आवाम है और ये बिल्कुल ये एक दिन का शो नहीं है जनाब, और ये बिल्कुल इस पर हम हर कुछ अरसे बाद इनको जगाते रहेंगे और इसी तरह जब तक हम अपना हक नहीं ले सकेंगे हम इसी तरह के प्रोग्राम। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पे खवातीन है। अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी बेटा आप जरा मुझे बताते हो, आप नारे लगा रहे हो यहाँ पर, आप इस रैली में आए हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप मुझे जरा बताती हैं ये कराची के हुकूक की जो रैली निकाली जा रही है ये किस हद तक इम्पैक्ट डाल सकती है? इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा। जब कराची वाले निकल जाते हैं तो समझिए पंजाब में लाहौर और सिंध में कराची, जब कराची बाहर आ गया तो इंशाल्लाह ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि तमाम सियासतदान जो इस्लामाबाद में बैठे हैं उनको पता चलेगा कि कराची वाले भी जियाले हैं। अच्छा। लाहौर वाले जियाले नहीं है, कराची वाले भी जियाले। कराची वाले जियाले हैं, वोट देने के टाइम पे फिर वो प्रूफ भी करेंगे। देखिए इंशाल्लाह करेंगे और करा था। ये और बात है कि रेगिंग इतनी जबरदस्त हुई कि हमने खुद देखा है कि जो वो थे बैलेट पेपर्स वो फटे हुए बुंगड़ियों में वेस्ट पेपर में हमें पड़े हुए मिले। जब ऐसा होगा तो क्या करेंगे? ईमानदारी होगी तो इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा, इंसाफ की हक होगी। कराची के मसाइल आप क्या समझती हैं कि अगर इमरान खान भी आ जाते हैं या आपकी लीडरशिप आ जाती है तो कितने वक्त में आप इसको सेटल कर लेंगे? देखिए बात यह है कि हथेली में सरसों नहीं उगा करती। अच्छा। हर चीज के लिए टाइम दरकार है। अच्छा। इन्होंने 3 साल में कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब आप चाहें कि 3 दिन में या 3 महीने में या 3 घंटे में इमरान खान कर दे तो उसके बाद जादू की छड़ी नहीं है। सही है। इंसाफ की बात कीजिए, टाइम लगता है लेकिन इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आप देखेंगे, दिन ब दिन आप देखेंगे तरक्की होगी। ठीक है, आप क्या कहती हैं कितना वक्त दरकार है कराची को उसके हक दिलाने में? आप देखिए अभी कितने सालों से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हुकूमत करे, इन्होंने क्या किया? अब इंशाल्लाह इमरान खान जरूर करेंगे। अच्छा। थोड़ा टाइम लगेगा। सपोर्ट करेंगी खवातीन भी बराबर? दायरे में मेंबर हूँ जरूर। बहुत शुक्रिया। ये खवातीन का पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस ट्रक पे मौजूद हैं और रैली का हिस्सा हैं। इनसे हमने बात की है
गो नवाज गो की जो है वो सदाएं इधर भी काफी हद तक बुलंद हो रही हैं, जो हम भी सुन रहे हैं और आप भी इस माइक और कैमरे के थ्रू देख रहे हैं। एक ब्रेक शामिल करेंगे और उस ब्रेक के बाद मजीद जो पीटीआई के अहदेदार हैं उनको ऑन बोर्ड लेते हैं और जानते हैं कि उनका क्या नैरेटिव है। फैमिली अभी यहाँ पर मौजूद है जहाँ मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, खवातीन भी हैं और उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहते हैं कि इमरान खान अगर आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज साउंड की गाड़ी कराची के हक की जंग लड़ने में लेट तो नहीं हो गए ये लोग? देखिए लेट खान साहब की गाड़ी को रास्ता दे, खान साहब की गाड़ी को रास्ता दे। एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनका क्या राइट है और क्या नहीं मिल रहा। ये गाड़ी से स्लीपिंग इज नॉट द सोल्यूशन। मतलब कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना है। ठीक है, यू थिंक कि ये कोई थोड़ा बहुत हिलजुल होगी? लेकिन देयर इज ऑलवेज अ होप और एक उम्मीद होती है जिसके सहारे इंसान जिंदगी को अपने आगे बढ़ाता है। और अगर उम्मीद कोई छोटी सी भी नजर आती है और मुझे लगता है कि मेरा मसला हल हो सकता है तो मुझे तो उसका खान साहब की गाड़ी को आप समझते हैं कि कराची के हुकूक के लिए पीटीआई कुछ कर सकती है? कराची के हुकूक के लिए पीटीआई कुछ कर सकती है बजाय इसके कि जो बाकी पार्टी यहाँ पर मौजूद है 18 दिन के लिए पीएसपी ने धरना भी दिया, फिर उसके बाद सारी पार्टियां उस दौड़ में लग गई। पीटीआई को आजकल काफी मकबूलियत है, हासिल है, सारे मुल्क में हासिल है। तो यकीनन इसके दबाव डालने जैसे गवर्नमेंट का दबाव पड़ेगा। कुछ हो जाएगा कराची का? हो जाना चाहिए एटलीस्ट। अब इलेक्शन नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कैंपेन है 2018 के लिए? ये बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन का एक पार्ट है ये, मगर गवर्नमेंट पर दबाव पड़ेगा जी। वोटर्स को तो पूरे 5 साल तक वोटिंग खान साहब की गाड़ी को रास्ता दे प्लीज। आप क्या समझते हैं? खान साहब की बस को रास्ता दे। सेम कमेंट्स। चलो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये लोगों की उम्मीद